Good morning student. Today we will start chapter number 14. The name of the chapter is statistics. First of all, you have to watch the Loom video for the introductions of the statistics part. What is the statistics? Statistics means is the collections of data and observations of the data and how and conclusion of the data. There are 4 exercises. First of all, we will do exercise 14.1. This exercise is very easy. In the 14.1, there are only 2 questions. First of question is that give example of the data that you can collect from your day to day life. हम डेली लाइफ में हम क्या कुछ कलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, number of students in our class. हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, या number of friends in your school, that is we collected. ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. या इलेक्शन रिजल्ट ऑफ voting by TV and newspaper. Understand? These are the more examples. For example, pockets money of the in our classroom students, okay, and electricity bill of our house in for the last 2 years. That is a type of our data. Okay beta, in the first question is very simple. In the second question mein beta, from the first question you have to find out what is a primary and secondary data. What is a primary data? Primary data that means that we have जो पर्सन जिस पर्सन की नॉलेज चाहिए होती है वो खुद कलेक्ट करता है. जैसे मान लो यू नो वेरी वेल कि आपको अपनी क्लास के बच्चों का डाटा चाहिए. दैट मीन यू हैव टू नो दैट कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास. दैट मीन यू नो वेरी वेल. दिस इज अ प्राइमरी डाटा. दैट मीन्स आप खुद ही कलेक्ट करते हो. अदरवाइज दिस इज अ सेकेंडरी डाटा. क्या होता है कि किसी आप कोई भी सर्वे करने आता है, सर्वे से आपको डाटा कलेक्ट किया, आपको जैसे इलेक्शन रिजल्ट टीवी से मिल रहा है, दिस इज अ सेकेंडरी डाटा. ये आपने खुद कलेक्ट नहीं किया. दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी डाटा. अंडरस्टैंड? एक्सरसाइज इज कंप्लीट. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 14.2. Now exercise 14.2. In this exercise you have to prepare the table, frequency table. That means you have to prepare the frequency table with the help of telemark. Okay beta. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ब्लड ग्रुप ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ द 8th क्लास आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. ब्लड ग्रुप आर गिवन टू यू A B O A B. So first of all you have to write here solution of first question. Blood group कौन कौन से है बेटा? A B O and A B. Okay, here you write telemark. Then you write frequency. Frequency means how many times A occur. How many students are there of a group A, group B, group O and group AB. A वाले count करो. There are how many A's? From the book you have to given that A 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So you have to tell him 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is a 9. Okay बेटा. Similarly B वाले कितने हैं हमारे पास? 6. 1 2 3 4 6. And O वाले कितने हैं बेटा? 12. 5 6 7 8 9 10 11 and 12. और AB वाले कितने हैं हमारे पास? ओनली 1 2 3. 1 2 3. तो कैलकुलेट करो इनका सम. 9 और 6 15, 15 और 12 27, 27 और 3 30. There are total 30 students. We have given already 30 students. Understand? Now represent the data frequency distribution table हमने प्रिपेयर कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? विच इज द मोस्ट कॉमन. सबसे ज्यादा कौन से हैं? O वाले. तो मोस्ट कॉमन कौन सा है बेटा हमारे पास? मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? O. एंड रेयरेस्ट कौन सा है? दैट इज AB. सबसे कम कौन से ब्लड ग्रुप
के पर्सन स्टूडेंट्स हैं, ए बी ग्रुप। अंडरस्टैंड। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन में 40 इंजीनियर्स हैं, हमारे पास बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, क्लास इंटरवल मेंटेन करना है। हमें गिवन है 0 to 5, तो विल हैव टू ट्राई द क्लास साइज आपने 5 ही लेके चलना है। दैट मीन 0 to 5 वाले काउंट करने हैं, जिसमें 0 तो लेना है बट आपने 5 को इंक्लूड नहीं करना। 5 to 10 में 5 लेना है बट 10 नहीं लेना। दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू ट्राई। एंड सिमिलरली third question, again you have to try it and I will explain with you fourth question. In the fourth question, the height of the 50 student is measured to be the nearest centimeter have given found to be as follows. Represent this data in the given grouped frequency में given करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फाइंड आउट चेकआउट करो सबसे लोएस्ट मार्क्स जो हाइट है वो कितनी है, दैट इज 150 एंड मैक्सिमम कितनी है हमारे पास 173। सो दैट्स व्हाई हमने स्टार्ट जो हमारा हाइट होगी इन सेंटीमीटर में, आपने क्लास इंटरवल्स में लेनी है। हाइट इन सेंटीमीटर में गिवन है, दैट मीन्स 150 से स्टार्ट होना है और 175 तक जाना है, बिकॉज 173 इज द लास्ट नंबर, इट इज अ रेंज। दैट मीन्स हमें पता लग गया कि हमारा जो क्लास इंटरवल है लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होगा और एंडिंग पॉइंट जो लार्जेस्ट नंबर है उसके अराउंड होगा। ओके तो हमें गिवन है कि जो क्लास इंटरवल है उसका क्लास साइज 5 लेना है, बिकॉज वी हैव गिवन 160 to 165, 165 to 170। तो 150 to 155, then 155 to 160 and 160 to 165, 165 to 170 and 170 to 175। ओके यहाँ टैली मार्क आपकी मर्जी है बेटा, टैली मार्क बना दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टैली मार्क हम बना देंगे तो भी हमारा आंसर जो है वो सही जाएगा। ओके टैली मार्क से ये होगा आपको इजीएस्ट पता लग जाएगा कि आपके पास कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब हमने 150 to 155 लेना है तो 155 को हमने इंक्लूड नहीं करना, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, देयर आर 12 स्टूडेंट्स। यू राइट देयर टैली मार्क and there you write frequency। 150 to 155 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, you write 12। Similarly 155 to 160 there are 9 students, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, you write 9। okay बच्चा। Similarly now 160 to 165 there are 14 students, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। okay बेटा understand। Similarly next 165 to 170 वाले काउंट करो, there are 10, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, that is 10। and 170 to 175 वाले कितने स्टूडेंट है, 50, 1 2 3 4 5। नाउ यू ऐड करो बेटा, इनका 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, कैरी 2 3 4 5। हमें 50 स्टूडेंट ही गिवन थे और हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी टेबल का जो टोटल आया है वो क्या आया हमारे पास, 50 ही आया है। दैट मीन्स अवर आंसर इज राइट। ओके बेटा फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा रेडी हो गया। नाउ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसका आंसर क्या गिवन है। ओके व्हाट इज द आंसर, दैट इज क्वेश्चन इज गिवन दैट व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द हाइट फ्रॉम द टेबल, कि आपको इस टेबल से क्या कंक्लूड निकल रहा है कि किस में जो है बच्चे ज्यादा हैं। दैट मीन्स व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं इस टेबल से, जो हमारा टेबल बना हुआ है, दैट मीन्स वी हैव कंक्लूड दैट कि विथ अबव टेबल मोर देन जो 50% स्टूडेंट्स हैं
उनकी जो हाइट है, सबसे ज्यादा जो हाइट है मोर देन 50%, दैट मीन्स ये देखो 12 और 9 कितने हो गए, 21 और 14, दैट इज अ 35 स्टूडेंट, दैट मीन्स 50% से ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 50% क्या होता है 25, तो दैट मीन्स 35 स्टूडेंट, 50% मोर देन 50% स्टूडेंट्स, 50% स्टूडेंट्स lesser than 165 सेंटीमीटर हाइट की, 165 से कम हाइट है। अंडरस्टैंड बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड एयर गिवन है, अगेन आपको इंटरवल गिवन है बेटा, यू हैव टू प्रिपेयर इट। सिक्स क्वेश्चन अगेन सेम, नाउ आई विल डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 7. In the seventh question, we have given the value of pi up to 50 decimal places in the given below. हमें पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 होती है, इन्होंने 50 डेसिमल तक दिया, दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल वी हैव 50 डिजिट्स आर गिवन. ओके, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9. आपने डिजिट देखने हैं जो 0 to 9 है, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी टाइम्स अक्रिंग, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने बार आ रहा है. ओके, दैट मीन्स देखो आप डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स में देखना है, आपने डेसिमल से पहले नहीं देखना बेटा जो 3 है, दैट मीन्स आफ्टर डेसिमल. ओके, बिकॉज हमें गिवन है आफ्टर डेसिमल. 0 कितनी बार आ रहा है, देर आर 2 टाइम्स रखते हैं, सो फ्रीक्वेंसी आप विदाउट टेली मार्क भी बना सकते हो, ठीक है, अगर आपकी कंफर्टेबल है. अगर गिवन है विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क तो आपको टेलीमार्क यूज करना पड़ेगा. तो 0 इज अकरिंग एट अ 2 टाइम. ओके बेटा, सिमिलरली नाउ चेक 1 हाउ मेनी टाइम्स अकरिंग, 1 इज अकरिंग एट अ 5 टाइम. ओके, सिमिलरली 2 इज अगेन 5 टाइम, 3 8 टाइम, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. Okay, and 6 4 times, 7 again 4 times, 7 8 5 times, 9 8 times. Okay beta, this is our frequency table. Okay beta, understand this table? Okay बच्चा, तो आप इसका जो सम करोगे ये 50 ही आएगा. देखो 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20, 24, 29 and 33, 37, 37 और 5 42, 42 और 8 50. तो 50 डेसिमल से तो हमारा फ्रीक्वेंसी का टेबल जो सम है वो सही है, दैट मीन्स अवर फ्रीक्वेंसी टेबल इज राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग. मोस्ट फ्रीक्वेंसी किस किस की आ रही है, सबसे ज्यादा किस किस की आ रही है, 3 and 9. मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकर 3 and 9 और लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकर कौन सी है, सबसे कम किसकी फ्रीक्वेंसी अकरिंग है, ओनली 0 की, दैट इज ओनली 0. दिस इज योर आंसर. अंडरस्टैंड. 8th and 9th question again will be a same beta, you have to try yourself. Now our exercise is complete. I hope you understand this exercise and do all the questions very well. Okay, if there is any query you tell me. Okay, thank you so much.